तेरा रास्ता नगतियों में
السلام کی اور روح القدس کی رفاقت آپ سب کے ساتھ ہو۔ مسیح خداوند میں عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم عالمگیر عیسیٰ کے ساتھ مل کر رات کے بت کی عبادت میں شریک ہیں۔ رات توبہ، تبدیلی اور پاکیزگی کی علامت ہے۔ قرآن مقدس کی تلاوتیں ہمیں تاکید کرتی ہیں کہ ہم ان روزوں کے ایام میں دعا، روزہ، ریاضت و خیرات کے کام کریں، دنیاوی عیش چھوڑ کر خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں تاکہ روحانی کاموں سے پاکیزگی میں بڑھتے ہوئے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ آج کی اس عبادت میں دعا کی رسم چھوڑ دی جاتی ہے اور عبادتوں کے بعد رات نمازے کے ساتھ ہم خدا کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ دعائیں دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ اے مہربان خدا، ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم پاک روزوں کے ذریعے بدیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مسیحی جنگ ان بدت بخش عبادتوں سے شروع کریں۔ ہمیں پرہیزگاری اور سخت ریاضت کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ توفیق عطا کر۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ پہلی تلاوت یوئیل نبی کی کتاب اس کا دوسرا باب 12ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ پہلی تلاوت میں یوئیل نبی فرماتے ہیں کہ تمام لوگ خداوند کی طرف رجوع لائیں اور دل کی پشیمانی سے توبہ کریں اور روزہ رکھیں۔ اپنے دلوں کو چاک کرو، نہ کہ اپنے کپڑوں کو۔ اب بھی خداوند کا فرمان ہے، روزہ رکھ کر دل آسانی کرتے ہوئے اپنے سارے دل سے میری طرف رجوع لاؤ۔ اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ اپنے دلوں کو چاک کرو اور ان کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم اور مہربان ہے، وہ طویل الصبر اور نہایت شفیق ہے، آفات نازل کرنے سے پچھتانے پر آمادہ ہے۔ کون جانتا ہے کہ شاید وہ ایک بار پھر پچھتائے اور برکت باقی چھوڑے۔ جو خداوند تمہارے خدا کے لیے نظر اور تپاون ہو۔ صہیون میں نرسنگا پھونکو، روزے کا اعلان کرو، مقدس محفل فراہم کرو، لوگوں کو جمع کرو، جماعت کو مقدس کرو، بزرگوں کو جمع کرو، بچوں اور شیر خواروں کو اکٹھا کرو۔ دلہا اپنے کمرے سے اور دلہن اپنے خلوت خانے سے باہر نکل آئے۔ بیوی اور مذبح کے درمیان کاہن یعنی خداوند کی خاطر ماتم کرے اور رکھے۔ یا خداوند اپنی امت پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے کہ غیر قومیں ان پر حکومت کرے۔ امتوں میں کیوں کہا جائے کہ ان کا خدا کہاں ہے؟ یوں خداوند کو اپنے ملک کے لیے غیرت آئی اور وہ اپنی امت پر رحم کرتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آج کا جماعت کی جواب۔ اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اے خدا ہم پر رحم کر کیونکہ ہم گناہ گار ہیں۔ اے خدا اپنی رحم
मुताबिक मुझ पर रहम कर और अपनी रहमतों की कसरत के मुताबिक मेरे गुनाह मिटा दे। मेरी बदी को अच्छी तरह से मुझसे धो डाल और मेरी कतार से मुझे पाक कर। जमायती जवाब, ऐ खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। क्योंकि मैं अपनी नाराजगी से वाकिफ हूँ और मेरा गुनाह हर वक्त मेरे पेशे निगाह है। मैंने सिर्फ तेरा ही गुनाह किया है और मुझसे वो काम हुआ है जो तेरी नजर में बुरा है। जमायती जवाब, ऐ खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। ऐ खुदावंद मुझ में पाक दिल पैदा कर और नए सिरे से एक मुस्तकिम रूह मेरे बातिन में डाल। अपने चेहरे के सामने से मुझे खारिज ना कर और ना ही अपनी पाक रूह मुझसे अलग कर। जमायती जवाब, ऐ खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। अपनी विचार की शादमानी मुझे फिर इनायत कर और इस्तदाद रूह से मुझे मजबूत कर। ऐ खुदावंद मेरे होठों को खोल दे तो मेरा मुंह तेरी तारीफ बयान करेगा। जमायती जवाब, ऐ खुदा हम पर रहम कर क्योंकि हम गुनाहगार हैं। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम 5वां बाब 20वीं आयत से 6ठे बाब की दूसरी आयत तक। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं कि खुदा से मेल कर लो, अब कबूलियत का वक्त है। ऐ भाइयों, हम मसीह के एजी हैं। गोया कि खुदा हमारे वसीले से नसीहत करता है। बस हम मसीह की तरफ से इल्तिमास करते हैं कि तुम खुदा से मेल कर लो। उसने इसको जो गुनाह से वाकिफ ना था हमारे बदले गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें खुदा की सदाकत ठहरें और हम उसके हमकार होकर तुमसे मिन्नत करते हैं कि तुम खुदा का फजल बेफायदा मत पाओ। क्योंकि वो कहता है कि मैंने कबूलियत के वक्त तेरी सुनी है और निजात के दिन तेरी मदद की है। देखो अब कबूलियत का वक्त है, देखो अब निजात का दिन है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो।
उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, खबरदार अपने रास्ते के काम लोगों के सामने दिखाने के लिए ना करो, नहीं तो तुम्हारे बाप की तरफ से जो आसमान पर है तुम्हें अजर ना मिलेगा। बस जब कुछ वैध करे तो अपने सामने खुद ही मत सुनवाओ, जैसे रियाकार इबादत खानों में और पूछों में करते हैं, ताकि लोग उनकी तारीफ करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। अगर जब तू वैध करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जाने, ताकि तेरी खैर पोशीदा रहे और तेरा बाप जो पोशीदगी देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मान ना होना, क्योंकि वो इबादत खानों में और गुजारों के घोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते ताकि लोग उन्हें देखें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में दुआ कर, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की मान अपना चेहरा उदास न बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजा रखे तो सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे बदला देगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारे गुनाह माफ किए जाएं। रोज़ों के इस रूहानी सफर के शुरू में खुदावंद यीशु मसीह रोज़े के 3 सुनहरी असूल हमारे सामने रखे हैं, ताकि रोज़ों के अय्याम में हम उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, उन पर अमल करें और खुदा से बढ़कर फजल और सलामती हासिल करें। ये 3 सुनहरी असूल कह लो या इन्हें 3 सतून कह लो, जिस पर हमारे रोज़ों के अय्याम की पूरी रूहानियत कायम है, और वो है रोज़ा, दुआ और खैर। जब हम रोज़े की बात करते हैं तो रोज़ादार में एक टूटे बर्दाश्त अदा करता है, उसे सब्र अदा करता है, खुदा पर तवक्कुल और भरोसे को बढ़ाता है, खुदा की तरफ हमें राग़िब करता है कि हम खुदा की तरफ रुजू लाएं, और खुदा की परवरदिगारी पर उम्मीद को मजबूत करता है। जब हम खुदा की तरफ रुजू की बात करते हैं तो ये आज की पहली तिलावत में हमने सुना है कि योएल नबी कहता है कि मुकद्दस महफिल का याद रहे कि हम जिस महफिल में भी आए हैं ये रूहानी महफिल है, ये पाक है, ये मुकद्दस है, ताकि हम इस महफिल में शामिल होकर अपनी अपनी रूहानी जिंदगी का जायजा लें, किस कदर हम रूहानियत में हैं और किस कदर हम दुनियावी मसरूफियत में शामिल हैं।
لیکن خدا آج میں سب کو دعوت دے رہا ہے کہ ہم خدا کی طرف رجوع لائیں۔ یوئیل نبی اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ چاہے کوئی نوجوان ہے، چاہے کوئی بزرگ ہے، چاہے کوئی شیخ اور بچہ ہے، سب کو اس محفل میں آنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس محفل کا حصہ نہیں بنتے تو ہمارے روزوں کا آغاز بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ تو خدا کا شکر ادا کریں آج کہ خدا نے ہم سب کو یہ موقع فراہم کیا ہے تاکہ ہم اس محفل میں، اس روحانی محفل میں شامل ہو کر اپنے روزے کا آغاز کریں، خدا کی طرف رجوع لائیں اور سب کے ساتھ، حتیٰ کہ دلہا اور دلہن کو بھی یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع لائیں، حتیٰ کہ کاہنوں کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی خدا کی طرف رجوع لائیں۔ تو ہم سب اس محفل میں آنے کے طلبگار ہیں اور خدا چاہتا ہے ایمان کے ساتھ، نیت کے ساتھ، اچھے طریقے سے، نیک کاموں کے لحاظ سے، نیک ارادے کے لحاظ سے اور نیک نیت کے لحاظ سے ہم یہاں پر آئیں۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ پھر ہم خدا کی پروردگاری پر امید رکھتے ہیں، پروردگاری پر امید رکھنا، خود کو امید ہے کر خدا کو اپنا پروردگار سمجھنا کہ وہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، حفاظت کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ضروریات کو پورا کرتا ہے، وہ ہم سب کا مددگار ہے اور ہم سب خدا کے پروردگار پر، اس کی پروردگاری پر یقین رکھتے ہیں۔ تو جب دعا کی بات آتی ہے تو اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ہم مخلوق ہوتے ہوئے دعا ہمیں ہمارے خالق سے بناتی ہے، دعا مخلوق کو خالق سے بناتی ہے اور ملاقات کرواتی ہے۔ روزہ دار روزہ رکھ کر خدا کی طرف جب رجوع لاتے ہیں تو خدا کے قریب آنا، خدا کی قربت میں آنا، خدا کی محبت میں آنا اور خدا کی رفاقت میں آنے کے بعد ہے۔ ایمان کے ساتھ کی ہوئی دعا ہم سب کو، دعا کرنے والے کو، دعائیا شخص کو خدا کا رحم دلاتی ہے، خدا کی معافی دلاتی ہے اور خدا سے تسلی دلاتی ہے۔ تو دعا میں بڑی طاقت ہے۔ اگر ہم روزوں کے دوران اپنی دعائیا زندگی میں ثابت قدم رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہم خدا کا رحم بھی حاصل کریں گے، معافی بھی حاصل کریں گے اور خدا میں اپنی تسلی سے بھی مارا مال کرے گا۔ پھر دعا روزہ دار میں تجدید پیدا کرتے ہوئے نیا پھل لاتی ہے۔ دعا ہی کے وسیلے سے ہم اپنے ایمان میں پرورش پاتے ہیں، اپنے ایمان میں بڑھتے ہیں، ہمارا ایمان پرورش پاتا ہے اور ہم اس دعا کے لیے اپنے اندر ایک تجدید پیدا کرتے ہیں، نئے انسان بن جاتے ہیں۔ پرانی انسانیت کو اتار کر ہم نئی انسانیت اپنے اوپر اوڑھ لیتے ہیں جو مسیح خدا کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ پھر دعا ہمارے ایمان کی خوراک ہے، ہمارے مسیحی ایمان کو دعا زندہ رکھتی ہے۔ دعا مومنین اور خدا کے درمیان کے تعلقات کو مضبوط کرتی ہے تاکہ ہمارے تعلقات مضبوط ہو جائیں۔ تو آپ جب بھی دعا کریں گے، چاہے آپ کوٹلی میں جا کر دعا کریں، چاہے کمرہ بند کر کے دعا کریں، تو یہ دعا خدا اور آپ کے درمیان ایک طرح کے گفتگو ہے، بات چیت ہے، ڈائلاگ ہے۔ خدا آپ کی سنتا ہے اور آپ خدا کی سنیں گے۔ خدا آپ سے گفتگو کرے گا اور آپ خدا سے گفتگو کریں گے۔ تو دعا ہمارے درمیان اور خدا کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے روزوں کے دوران دعا پر زور دیں اور اپنی دعائیا زندگی کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کریں۔ ہاں، روزہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نہیں بھی رکھ سکتے، جو بیمار ہیں، اور بیماروں پر روزہ لاگو نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے، خدا اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن روزے کے علاوہ جو دو دوسرے فرض ہیں ان کو تو ہم عمل میں لا سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں اور خیر کے کام کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے
खाने पीने से हम थोड़ा तो हो सकता है, लेकिन दुआ से हम नहीं पढ़ सकते। दुआ करना लाजमी है। दुआ के लिए हम लाजमी, चाहे हम बीमार हैं, चाहे हम तंदुरुस्त हैं, दुआ के लिए टाइम निकाला जा सकता है और दुआ करना चाहिए। तो दुआ हमारी सोचों को, इरादों को, ख्वाहिशों को तब्दील कर देती है। जो हमारी ख्वाहिशात हैं, हमारे इरादे हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी तमन्नाएं हैं, दुआ उनमें तब्दीली लाती है। खुदा नहीं बदलता, खुदा अपनी जगह हमेशा कायम है, लेकिन दुआ के लिए हम अपने अंदर तब्दीली ले आते हैं और दुआ में तब्दील कर देते हैं। फिर खिरायत के बारे में कहा जाता है कि खिरायत तमाम खताओं और मौत से बचाती है, खताओं से बचाती है और मौत से बचाती है। खिरायत में इतनी ताकत है कि वह मौत से बचा सकती है। जो लोग खिरायती काम नहीं करते, जो लोग इस तरह की रूहानी एक्टिविटीज नहीं करते, जो लोग दूसरों का एहसास नहीं करते या दूसरों की मुश्किल में मददगार नहीं होते, मौत उन पर आ जाती है। आप देखें कुरान मुक़द्दस में भी बेशुमार ऐसे वाक़यात यहाँ माना जाता है जहाँ इंसान खिरायती काम करता है, वो बेशक की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। जो खिरायती काम करने से, जरूरतमंदों को देने से या जरूरतमंदों की मदद करने से जी चलाते हैं या मुंह मोड़ लेते हैं, वो खुदा की बादशाही में भी दाखिल नहीं हो सकते। तो खिरायत हमें खुदा की बारगाहों में या हमेशा की जिंदगी बनाने की ताकत उत्पन्न करती है। खिरायत रूह को अंधेरे की तरफ जाने से बचा लेती है। कितनी ताकत है कि खिरायत हमें, हमारी रूह को अंधेरे की तरफ जाने से बचा लेती है। खिरायत अपने इर्द गिर्द के गरीबों, जरूरतमंदों, यतीमों और विधवाओं के लिए हमारे अंदर रहम दिली पैदा करती है, हमदर्दी पैदा करती है, ताकि हम उनकी मदद करने के लिए दिल का दरवाजा खोलें। तो जब तक हम कन्विंस नहीं होते कि मैं एक दूसरे की मदद करें, उस वक्त तक खिरायत के काम नहीं हो सकते। तो खिरायत उन तमाम अनासर को हमारी जिंदगी से दूर करती है जो मसीह खुदावंद के पास आने में रुकावट का बायस है। जो मसीह खुदावंद के पास आने में रुकावट का बायस है। खिरायत का तकाजा है कि उन तमाम चीज़ों और अमाल और अनासर से किनारा कशी करें जो हमें नेकी करने से रोकते और गुनाह की तरफ ले जाते हैं। खिरायत देने करने वाला या देने वाला हम की कुर्बानी गुजरानता है। खिरायत देने वाला या खिरायत करने वाला गोया हम की कुर्बानी गुजरानता है। तो कितनी बात है इसके अंदर कि अगर हम खिरायत के काम करते हैं तो हम खुदा के नज़दीक हम की कुर्बानी गुजरानते हैं। तो जी मेरे भाइयों, रोज़ों के दौरान ये चंद बातें हैं जिन पर हमने गौर गौस करना है और अपने आप को खुदा के करीब लाना है। फिर रोज़ों के दरमियान याद रखें कि 14 काम की इबादत बहुत ज़रूरी है। 14 काम की इबादत बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में कहा जाता है कि 14 काम रोज़ों के दौरान अपने अंदर पुरकशिश, कुदरत और ताकत रखते हैं। ये इबादत रूहानी इबादत है और एक रूहानी सफर है और मसीही ईमानदारों को दावत देती है कि दुख, मसीह खुदावंद के दुख, मौत और जितने की गहराई में जाएं और अपने ईमान में और उसके प्यार में बढ़ते जाएं। तो इन रोज़ों के दौरान कोशिश करते रहें कि हम ये सफ़र मिलकर करें, इकट्ठा सफ़र ये जारी रखें। इस सफ़र को एक दूसरे का साथ दें, इस सफ़र में एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को वो माहौल पैदा करें ताकि हम दुआ में सरगर्म रहें, खिरायत के कामों में सरगर्म रहें, रोज़ा रखने में सरगर्म रहें, किसी के लिए ठोकर का बायस ना बने जिससे
हमारी शख्सी ज़िंदगी भी और दूसरे की ज़िंदगी भी मिसाल से हो। तो आए खुदा से दुआ करें कि खुदा हमारी मदद करे, खुदा हमारा मददगार हो, हमारा उस पर भरोसा है, उसी पर हमारा तवक्कुल है, ताकि उन रोज़ों के सफ़र में, इस रूहानी सफ़र में हमारी मदद करे, ताकि हम अपने अंदर तब्दीली करें, अपने अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल करें और खुदा से बरकत, सलामती और खुशी और शादमानी और तसल्ली हासिल करें। आमीन। तौबा का इज़हार करने के लिए बातों को आज़ाद में लाएंगे। तो आइए आज इसी के साथ खुदा से दुआ करेंगे कि वो अपने बड़े फजल के साथ इस रात को पाक करे और मुकर्रर कराए। खुदा तो फरोख्ती को देख कर सिखाता है और मुखालिफ पर निगाह करके मेहरबान हो जाता है। मेहरबानी से हमारी इल्तिजाओं की तरफ पहुँच जाता है और अपने बंदों को इलाही बरकत की तौफीक अता है, जिनके बाद पर रात लगाई जाएगी। इन्हें सच्ची तौबा का फजल बख्श, रोज़ों की पाबंदी करते हुए साफ दिलों के साथ तेरे बेटे के पढ़ने और लिखने की मनाने की याद हो जाए। ऐ मेहरबान खुदा, तू गुनाहगारों की हिदायत नहीं बल्कि उनकी तौबा चाहता है। मेहरबानी से अपने बंदों की दुआ कबूल करके इस रात को बरकत दे। हम इसे अपने बातों पर लगाएंगे ताकि हमें याद रहे कि हम सिर्फ खाक हैं और खाक में ही लौटेंगे। वक्त से कि हम गर्मजोशी के साथ रोज़ों की पाबंदी करने से अपने गुनाहों की माफ़ी और जिंदा मसीह से नई जिंदगी हासिल करने के काबिल रहे। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन।
दिल से बदलना चाहिए।
दुआ करें। मेहरबान खुदा पापा याकूब फ्रांसिस को तंदुरुस्ती और सेहत अता करे ताकि वो कलीसिया में रूहानी बेदारी को उजागर करने वाले हों। अजीजों दुआ करें। मेहरबान खुदा तमाम बिशप साहिबान, फादर साहिबान, सिस्टर साहिबान और तमाम मुबशरान इंजील को और ज़्यादा बरकत से मालामाल करे ताकि वो मुमिनीन की रूहानी नशोनुमा उसकी हिदायत से करते जाएं। अज़ीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा इन रोज़ों के अयाम में हम गरीबों, मुहताजों, बेवाओं और यतीमों की मदद करें। अज़ीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा इन रोज़ों के अयाम में हम रूहानी कामों में मशगूल रहें और खानदानी दुआ को फरोग दें। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान खुदा हमारे मुल्क में अमन और सलामती को कायम रखें। अजीज़ों दुआ करें। मेहरबान बाप वापसी के साथ इंतजार करते हैं इस रूहानी सफ़र में हम सबको बरकत दे, क्योंकि ये सफ़र बहुत बरकत सफ़र है और हमें हर तरह की आजमाइशों पर, बुरी ख्वाहिशों पर गालिब आने और फतह हासिल करने की तौफीक अता कर हमारी रहनुमाई कर, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। आज का नजराना लश्कर मरीम ग्रुप की तरफ से शुक्रगुजारी की इबादत अजीम कौरी, अरशद और नसरीन, शहर और सिल्विया, यूसुफ मेगा, ओनिल सपना, सुनील और रोहित, सेहतयाबी के लिए मरियम सलीम, नेल्सन जेम्स, डॉक्टर नौशरवानी, नेक मकसद के लिए असलान, अरशद, सिल्विया जेम्स, जसिका विल्सन, मरहूम ईमानदारों के लिए मेंबर और मनीरा, बूटा मसीह, सैर मसीह, सलीम जेम्स, मिस्टर एंड मिसेस नज़ीर गिल, अरशद गिल, नज़ीर मसीह, अल्लाह रखी बीवी, मिस्टर एंड मिसेस सैमसन, चार्ल्स माइकल, सिसिलिया विल्सन। में
से इल्तिजा करते हैं कि तू उन्हें नुकसानदेह आदतों से बाज रख, नेज़ नफ्स खुशी और दीनी मोहब्बत के कामों की वजह से गुनाहों से पाक साफ कर। हमें इस लायक बना कि अकीदत के साथ तेरे प्यारे बेटे के दुखों को याद करें, जो मरकर और मुर्दों में से जिंदा होकर अब तेरे साथ हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदावंद आपके साथ हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नैब नासिर है कि दुरुस्त बाप के हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तू जिस्मानी रोज़ों से हमारी बुरी ख्वाहिशों को दबाकर और हमारे ख्यालों को बुलंद करके हमें नेकी की ताकत और अजर की इनायत करता है। मसीह हमारे खुदाम के वसीले से जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हम को सना करते हैं। कदूस 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 मेहरबान बाप जो बाकी कदूस है, तू पाक है, बड़ी पाक चीज से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भी, ताकि ये इंसान पाक और मुतरे को हमारे खुदा यीशु मसीह का बदन और खून बने। यीशु ने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौके पर रोटी, उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह से खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, मैं अपनी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बदले बहुत से लोगों की नाम की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में इंतजार करो। हमारे ईमान का भेद कसर बाप हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी गुजार का प्यारा तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने सिलाए समझा कि मेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आज के साथ इंतजार करते हैं वक्त का मसीह का बल और खून लेकर उसका सीध से आपस में एक बने। ऐ खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस, हमारे मिशन वैली और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, इसे काबुल मोहब्बत अता हुआ। ऐ मेहरबान बाप, इंतजार करते हैं उन सब की याद की पाप कुर्बानी चढ़ाई जा रही है। इस कुर्बानी का असर सब तक पहुंचा और इस मुकद्दस और रूहानी महफिल में आने वालों को अपनी दुआ सलाम कीजिएगा। हमारे भाइयों बहनों पर भी नजर कर जिनकी पूरी के में सो गए, इस तमाम रूहों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं सब पर रहम कर, ताकि खुदा की बारिक माफ हमारी मरियम मुकद्दस यूसुफ मसा मरियम का नहायत पाक हो, मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ इस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम्द और सना कर सके।
उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी ने कुछ खुदा बाप को बिल्कुल उसकी वैधानियत में कामल इज्जत और ताज़ीम शया है हमेशा से हमेशा तक आमीन। हम अपने निजात देने वाले से हिदायत पाकर पूरे दुरुस्त और ईमान के साथ उसी तरह दुआ करें जिसका हमारे इख्तिलाफी ने सिखाया है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिसका हम अपने कर्जदार को बख्शते हैं, तू हमारे कर्ज में बख्श, और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, सावधानी से बचाए हमें इस्लाम की वक्त, आखिर तेरी शफ़क़त तौफ़ीक़ से अपने वादे को उम्मीद के पूरे होने और वसीह करने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज़ रहें। ऐ खुदा, यीशु से मैं अपने ईश्वर से तुम्हारे पास नाम छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी इस रात की तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों का नहीं बल्कि अपनी इसका ईमान का गुज़र कर और उसे बोझ का इंतहार पर तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है। हमारे खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। एक दूसरे की सलामती चाहें। ऐ खुदा के बड़े जो ये है खुदा यीशु से खुदा का बदला जहान के गुनाहों को मारे जाता है। हमारे क्या हम सब इस बदले की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं।
جو پاک شراکت ہم نے دی ہے اس سے ہمیں یہ مدد حاصل ہو تمہارے روزے تیری نظر میں مقبول ہو اور ہمارے لیے یہ شفا کا باعث مسیح ہمارے خدا کے وسیلے سے خدا آپ کے ساتھ ہو اور بیٹے اور القدس کی برکت سب پر ہمیشہ تک قائم رہے ہماری عبادت ہو چکی ہے سلامتی کو خوشی سے چھائے یاد رکھیں کہ روزوں کے دوران روزہ کشائی کا کوئی پروگرام
मुनक्कद ना किया जाए। रोज़ा कुशाई करना ये हमारे रोज़ों का हिस्सा नहीं है। हम दूसरों से ये सीखते जा रहे हैं कि दूसरे ये करते हैं, वो करते हैं, शरबत मानते हैं, वो करते हैं।